Hello students, how are you all? Hope you all are doing well and enjoying the vacations with your family. So stay home, stay safe. Alright? So I am here, your science teacher again. Today we are going to start a new chapter, magnetic effect of electric current. Electric current we have studied. We will study now about magnetic effect of electric current. So to study magnetic effect of electric current, first we have to understand magnet. What is magnet? What are the effects of magnet? What are the properties of magnet? All these we have to understand, then only we can understand magnetic effect of electric current. Alright? So here are the topics which you should know about the magnet. I have already made videos on these topics. So I have mentioned the links of that videos in the description box. Please click on that and study these topics very well. Then only you can understand the further chapter. Alright. So after magnetic force, we are going to start a topic, magnetic field. What is magnetic field? एक मैग्नेट के आसपास का जो रीजन होता है जहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. सपोज दिस इज़ अ मैग्नेट. इस मैग्नेट का मैग्नेटिक रीजन सिर्फ इतना है, सिर्फ इतने रीजन में ये अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है. अगर मैंने इसके बाहर कोई आयरन का ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता. ओके. सेम ऑब्जेक्ट आयरन का अगर मैंने इस फील्ड के अंदर रख दिया तो ये इसको ईजीली अट्रैक्ट कर सकता है. राइट. सेम जस्ट कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासरूम. अगर सपोज दिस इज़ अ टीचर, ठीक है, दिस इज़ अ क्लासरूम. यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं. सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. तो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो सिर्फ इस क्लासरूम के बच्चे ही सुन सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जो प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स विच टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग इन दिस क्लास. सो टीचर कांट अट्रैक्ट दीज स्टूडेंट्स. टीचर ओनली कैन अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स विच आर इन द क्लास. ओके. सो टीचर इज़ अ मैग्नेट एंड क्लास इज़ द रीजन ऑफ मैग्नेट. ओके. तो मैग्नेट का एक पर्टिकुलर रीजन होता है. उस रीजन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं. उस रीजन के बाहर के ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता. तो जो ये रीजन होता है मैग्नेट का, जहाँ तक वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सकता है उसे बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड. उसकी फील्ड है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड. जैसे क्रिकेट फील्ड होती है कि उस फील्ड में ही बस क्रिकेट खेला जा सकता है. राइट. क्रिकेट की एक फील्ड होती है कि सिर्फ इसी फील्ड में हम क्रिकेट खेल सकते हैं. उसके बाहर जहाँ पे ऑडियंस बैठी रहती है वहाँ पर तो नहीं खेल सकते. सिमिलर फॉर मैग्नेट. मैग्नेट की भी एक पर्टिकुलर फील्ड है कि वो सिर्फ उसी फील्ड के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकता है. बाहर जहाँ पे ऑडियंस बैठी है वहाँ अट्रैक्ट नहीं कर सकता. ओके. वहाँ पर जाकर नहीं खेल सकता मैग्नेट. क्लियर? So this was all about magnetic field. So the lines representing the magnetic field, you can see the two lines here and two lines here. These lines are called magnetic field lines. We use magnetic field lines to represent magnetic field. Magnet के आसपास magnetic field को represent करने के लिए हम किसे use करते हैं? Magnetic field lines को. Alright, किसे use करते हैं? Magnetic field lines को. Alright. So now how we can draw these magnetic field lines? Let's understand this, how we can draw magnetic field lines. Let's do an activity for it with the help of compass needle and pencil and a paper. Okay. So here in this picture you can see a magnetic compass. Okay. Magnetic compass contains or consists of a magnetic needle in a brass box. Okay. In earlier days when GPS system was not there, today we are using global positioning system to find out the direction where we want to go. But in earlier days when GPS was not there, people used magnetic compass to find out the directions. Okay. Sailors especially.
They use magnetic compass. So today we are going to use this magnetic compass to perform an activity, to see how we can draw a magnetic line of force with the help of magnetic compass. So here we will take a wooden board, place a white sheet on it and a bar magnet. Now draw the boundary of bar magnet. Alright. Now place bar magnet in that boundary only. And now we have placed a magnetic compass near the north pole. Alright. नॉर्थ पोल के पास हमने मैग्नेटिक कंपास रख दिया. मैग्नेटिक कंपास रखने के आफ्टर 2-3 सेकेंड्स इट विल गेट स्टेबल. वो स्टेबल हो जाएगा. और मैग्नेटिक कंपास हमें कौन सी डायरेक्शन बताता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑलवेज. ठीक है. जब वो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होने के बाद एक एंड वो मैग्नेट बार की तरफ शो करेगा और एक एंड जो उसका होगा उधर हम एक पॉइंट मार्क करेंगे. सी यू कैन सी इन अ बिगर पिक्चर. पॉइंट मार्क किया. अगेन यू विल कंटिन्यू विद दिस एक्टिविटी ओनली. ओके. व्हाट यू नीड टू डू, अगेन जहाँ पर आपने पॉइंट मार्क किया है उसके आगे आप मैग्नेटिक कंपास रखोगी. एक एंड आपका उस पॉइंट को मार्क शो करेगा और अनदर एंड यू हैव टू ड्रॉ अ पॉइंट अगेन. उधर आपको फिर से एक पॉइंट लगाना है. ऑल राइट. While continuing with this activity, you will reach the south pole. Okay. See, by continuing with this activity, you will reach the south pole. All right. Now we will join all these points, and we will get a closed curve. Okay. We will get a closed curve. This closed curve is known as magnetic line of force. Alright, so we can draw another magnetic lines of force by using magnetic compass. Magnetic compass यूज़ करके हम और भी magnetic lines of force बना सकते हैं और हमें इसी तरीके के closed curves मिलेंगे. Alright, this is the activity we need to perform. Alright, इससे हमें पता चला कि हम magnetic lines of force को बार मैग्नेट और magnetic compass यूज़ करके किस तरीके से draw कर सकते हैं. Alright, so further what we need to do is, here we have used a bar magnet and magnetic compass. Now we will see about magnetic region or magnetic field of bar magnet. bar magnet की अब हम देखेंगे magnetic field. Alright, with the help of iron और बार मैग्नेट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन से पैटर्न्स बनते हैं. इधर तो वी हैव ड्रॉन अ पैटर्न, क्लोज्ड कर्व पैटर्न. अब हम देखेंगे कि बार मैग्नेट के आसपास अगर हम आयरन फिलिंग्स डालते हैं. आयरन फिलिंग्स आर व्हाट? द पाउडर ऑफ आयरन. आयरन का हम पाउडर कर देते हैं तो वो उसकी आयरन फिलिंग्स होती हैं. ऑलराइट. जब हम वो बार मैग्नेट के आसपास डालेंगे आयरन फिलिंग्स तो व्हाट वी विल गेट, विच पैटर्न वी विल गेट, that we will see in further activity. Let's go. So here we will see how patterns form of lines of force. Lines of force के कौन से patterns बनते हैं. जो pattern हमने compass needle और pencil को use करके बनाया है, क्या same वही patterns बनते हैं और any other pattern we get. Okay, so let's start with the patterns of पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और पैटर्न्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट की वजह से कौन से पैटर्न्स बनते हैं. नाउ प्लेस अ शीट एंड ऑन दैट अ बार मैग्नेट. नाउ पुट अ शीट ऑन अ बार मैग्नेट एंड प्लेस सम आयरन फिलिंग्स ऑन दैट. दीज ब्लैक मार्क्स यू कैन सी. These black marks you can see. Okay, these are iron fillings. What are these? Iron fillings. Iron fillings means iron का powder. Okay, so what we have done, we have taken a bar magnet. एक बार मैग्नेट लिया. बार मैग्नेट के ऊपर एक हमने वाइट शीट रखी. ऑल राइट. उस वाइट शीट के ऊपर हमने आयरन फिलिंग्स डाले. नाउ टैप दैट वाइट शीट जेंटली. अब हमें वो टैप करनी है वाइट शीट को. तो आफ्टर टैपिंग व्हाट वी विल सी दैट these iron fillings come in a pattern.
लाइन्स ऑफ फोर्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पैटर्न बन गया, कर्व्ड पैटर्न। इन सेंटर देयर इज़ अ बार मैग्नेट, जहाँ पर बार मैग्नेट का साइन बना है वहीं पे नीचे हमने बार मैग्नेट रखी थी और ऊपर उसके क्लोज्ड कर्व्स बन गए, तो अवर पैटर्न वाज राइट। ठीक है, दीज आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड दिस इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ऑल राइट, नाउ वी विल सी patterns of magnetic lines of force with the help of two bar magnets. Alright, in first case we will put the opposite poles together and then we will put the same poles together, then we will see what we will get. Okay, so here now two bar magnets with opposite poles. Alright, north pole and south pole, these are two opposite sides of bar magnets. Now place a sheet with iron fillings and tap it gently as we have done earlier. Okay, now this is the pattern you will get. मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का हमें ये पैटर्न मिलता है जब हम दो मैग्नेट्स के ऑपोजिट पोल्स को एक दूसरे के सामने रखते हैं, तो वी विल गेट दिस टाइप ऑफ पैटर्न। ऑल राइट, मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे सेंटर में सर्कुलर पाथ बन जाता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ऑल राइट, इट ट्रैवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देखिए आप नॉर्थ टू साउथ की तरफ ट्रैवल कर रही है। ऑल राइट, नाउ व्हाट हैपन इफ वी विल पुट द सेम पोल्स टुगेदर, सी north and north poles are together, like poles are there. Now place a sheet with iron fillings and tap it gently. So what we will get, you will get a pattern like this. See, in magnified picture I have shown you a pattern of two bar magnets. Okay, NP means neutral point. न्यूट्रल पॉइंट में क्या हुआ है, वहाँ पर सारी मैग्नेटिक फील्ड पास आउट हो गई। जहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है, आपने प्रीवियस पिक्चर में देखा होगा, वहाँ पर एक राउंड सर्कल बन रहा था। ओके, बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स आर अट्रैक्टिंग दैमसेल्व्स, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रही थी। बट यहाँ पर हमने सेम पोल्स रखे हैं, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो एक दूसरे से दूर भागेंगी, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। जब वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो सेंटर में न्यूट्रल पॉइंट बनेगा, मीन्स सेंटर में कोई भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स या कोई भी मैग्नेटिक रीजन नहीं होगा। ऑल राइट, दीज वर द केसेस। सो हियर नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, वी हैव seen the patterns, what pattern we will get of magnetic field lines or magnetic lines of force. मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर द सेम, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पिक्चर में जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न इस तरीके का सर्कुलर पैटर्न वी हैव सीन इन टू एक्टिविटीज़। जो हमने आयरन फिलिंग्स और बार मैग्नेट के साथ किया था तो हमें ऐसा ही पैटर्न मिला था, और जो हमने मैग्नेटिक कंपास के साथ किया था उसमें भी हमें ऐसा ही पैटर्न मिला था। ये जो पैटर्न होता है इसको हम बोलते हैं अनियन शेप्ड पैटर्न। ठीक है, अनियन जैसा होता है ना, बीच में से ओवल एंड देन साइड से ऐसे बाहर निकला हुआ, तो उसे हम अनियन पैटर्न बोलते हैं। ऑल राइट, नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि जो हमें मैग्नेटिक फील्ड शो करती हैं, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। व्हाट वी विल सी द प्रॉपर्टीज़ नाउ। So first property is, this is our first property. All right, first property is magnetic field lines result in the formation of continuous or running closed loop. Okay, what कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो हमेशा क्लोज्ड लूप होती हैं। कैसे होती है, हमेशा क्लोज्ड लूप, इस तरीके का ये पैटर्न मिलता है हमेशा हमें। विच पैटर्न, क्लोज्ड लूप पैटर्न। हमेशा स्ट्रेट लाइन तो हमें कभी नहीं मिली, हमें हमेशा कैसे मिले, क्लोज्ड लूप। ऑल राइट, बट वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि हमें हमेशा क्लोज्ड लूप ही मिलता है। वाई इज इट सो, बिकॉज कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करती हैं. हाउ इट विल ट्रैवल? नॉर्थ टू साउथ. सी, नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रही हैं. एरोज यू कैन सी ऐसे नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रही हैं. बट इफ़ यू सी इनसाइड द बार मैग्नेट, अभी तो हम बाहर की बात कर रहे हैं, आउटसाइड द बार मैग्नेट. इफ़ वी विल सी इनसाइड द बार मैग्नेट, इनसाइड क्या होगा? इट विल ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. कैसे ट्रैवल करती हैं? साउथ टू नॉर्थ. ऑल राइट, सी सर्कुलर कर्व यू कैन सी. इधर आपको सर्कुलर कर्व दिख रहा है कि देखो बाहर वो नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रही है और अंदर साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, फिर अंदर साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ. That's why we will get a circular closed curve. That's why we will not get magnetic field lines with a straight line. We will not show the magnetic field lines with a straight line. हम कभी भी magnetic field lines को straight line से show नहीं करते, हमेशा closed curve से show करते हैं. Why? Because of this reason कि बार मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक ट्रैवल करती हैं और बार मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करती हैं. All right, hope you all have understood this thing very well. If you have understood, please comment or like, or if you have any doubt you can comment in the comment section and ask. Next is magnetic force is strongest at the poles. Okay, you have done the activity of bar magnet or iron filings. So what you have seen कि poles के पास आयरन फिलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं. पोल्स के पास आयरन फिलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं. पोल से जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ आते जाते हैं आयरन फिलिंग्स दूर दूर, हमें क्लोज कर्व मिलता है. ठीक है, इस तरीके से दूर दूर हो जाती हैं. बट पोल्स पे बहुत ज़्यादा होती है. पोल्स पे इतनी सारी आयरन फिलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हैं. वाई? बिकॉज पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है. पोल्स पे मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है. जैसे ही हम सेंटर की तरफ आते हैं, मिडिल में आते हैं, वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स वीक होता है, मिनिमम होता है. ऑल राइट, पोल्स पे मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है और मिडिल में मिनिमम होता है. पोल्स पे मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है और सेंटर में मिडिल में मिनिमम होता है. ऑल राइट, वन मोर थिंग वी कैन कंक्लूड कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा डेंस होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस एरिया में सबसे ज़्यादा होती हैं वो उस एरिया में मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है. ओके, इन कंप्लीट रीजन, इन दिस कंप्लीट रीजन यू कैन सी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा डेंस कहाँ पर है? इस एरिया में सबसे ज़्यादा डेंस है. इस एरिया में सबसे ज़्यादा डेंस है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट कि कहाँ पर मैग्नेट की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी. ऑल राइट, तो पोल्स पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होता है और मिडिल में मिनिमम होता है. रिमेंबर दिस. सो नेक्स्ट इज the tangent of the field line at any given point indicates the direction of the total magnetic field at that point. Okay, so tangent, what is tangent? See here picture. See, if you have a circular path, if you draw a tangent, if you draw a line like this is called a tangent. इसको क्या बोलते हैं? हम tangent बोलते हैं. Similarly, magnetic lines of force पे अगर हम एक tangent draw करते हैं तो what it will show? It will show us the direction of magnetic field. ओके, कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर है. सपोज मैंने इस लाइन पे नहीं इस लाइन पे ड्रॉ किया तो यहाँ पर ये ड्रॉ किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड है? इस साइड है. ऑल राइट, अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगी, सपोज लाइक दिस आई हैव ड्रॉन अ टेंजेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता चलती है. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सी हेयर इज अ टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है. ऑल राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दैट विल शो अस द डायरेक्शन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है वो हमें पता चलता है. अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगी तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा. अगर मैं इस पॉइंट पे ड्रॉ करूँगी तो ये यहाँ पर मुझे टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा.
ऑलराइट, उस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता चलती है, नॉट कंप्लीट इस पॉइंट की। अगर मैंने इधर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया है तो मुझे उस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगी। ऑलराइट, सो टेंजेंट हमें क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ऑलराइट, नेक्स्ट, नो टू मैग्नेटिक लाइन्स कैन इंटरसेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट। अभी तक आपने जितना भी पैटर्न देखा लाइक दिस, आपको कहीं कभी भी आपने देखा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं कर रही। क्यों नहीं करती? वाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? लेट्स सी। अभी हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगी तो वो मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। ऑलराइट, दीज आर दी टू magnetic lines of force. These are not magnetic field, these are the two magnetic lines of force. Okay, I have drawn a tangent here. तो tangent मुझे क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन अ सिमिलर वे, अगर मैं दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ऐसे इंटरसेक्ट करा दूंगी, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर मैं इंटरसेक्ट करा दूंगी, ऑलराइट, तो जो ये वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो मुझे डायरेक्शन इधर शो कर रही है, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो मुझे डायरेक्शन यहाँ शो कर रही है। तो एक ही मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शंस हो सकते हैं क्या? ऑलराइट, सपोज ये बार मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है, इसमें मैंने टेंजेंट शो किया, ड्रॉ किया, तो ये मुझे डायरेक्शन यहाँ दिखा रहा है। इसमें मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, डायरेक्शन यहाँ दिखा रहा है। अब मैं अगर इसको इंटरसेक्ट करा दूँ, एक ही बार मैग्नेट की दो लाइंस को मैं इंटरसेक्ट करा दूँ, ठीक है, इफ़ आई इंटरसेक्ट लाइक दिस, ठीक है, इसका डायरेक्शन मुझे यहाँ शो कर रहा है, इसका डायरेक्शन मुझे यहाँ शो कर रहा है। तो एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दो डायरेक्शंस हो सकते हैं क्या? एक ही मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शंस हो सकते हैं क्या? अगर दो डायरेक्शंस होंगे तो आप लाइंस कैसे ड्रॉ करोगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाओगे? टेल मी। आपने कंपास वाला एक्सपेरिमेंट किया, अगर उसमें कंपास आपको दो डायरेक्शंस बताता तो आप कर सकते थे क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते थे? या आपने कंपास यूज़ कर करके आपकी कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इंटरसेक्ट करी क्या? जब आपने मैग्नेटिक कंपास यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया, मैग्नेटिक कंपास यूज़ करके आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया था, तो आपकी कोई भी लाइन इंटरसेक्ट की थी क्या? नहीं की थी। क्योंकि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी दो इंटरसेक्ट कर जाती और यहाँ पर आप कंपास पुट करते, यहाँ पर आप कंपास रखते, तो वो आपको कौन सा डायरेक्शन बताता? विच डायरेक्शन विल बी राइट? कौन सा डायरेक्शन बताता? एक ही डायरेक्शन बताता। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते, इसीलिए दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ऑलराइट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये हमें सेम डायरेक्शन बता रही है। अब यहाँ पर हमने इंटरसेक्ट कर दिया तो ये दो डायरेक्शंस बताने लगी। तो एक ही चीज़ के दो डायरेक्शंस हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई। So these were the properties of magnetic lines of force, and this was the lecture of magnetic field and magnetic lines of force. So hope you all have understood it very well. If there is any problem, you can ask in the comment section, else you can like my lecture. All right, thank you so much.